pleasure and honor to stand before you today. I, Pragya, Innovation Ambassador, feel privileged to welcome you all to this intellectually enriching workshop on research paper writing and general publication support, organized by the Institution's Innovation Council and R&D cell of our esteemed institution, DAV College for Girls, Yamunanagar. Today's session is not merely a formal gathering, it is a significant academic initiative aimed at nurturing research culture, promoting innovation, and guiding students and faculty towards meaningful scholarly contributions. Research is not just about writing papers, it is about curiosity, questioning the known, discovering the unknown, and presenting ideas that can shape the future. As students and educators, we are not only learners, we are contributors to knowledge. An event becomes meaningful and successful because of presence of inspiring leaders and mentors. It is my proud privilege to extend a heartfelt welcome to our respected dignitaries, our respected convener IIC, Mrs. Vivek ma'am, whose constant encouragement and sincere efforts play a vital role in organizing such progressive academic programs. Ma'am, your commitment towards fostering innovation among students is truly inspiring. I also welcome today's event coordinator and innovation ambassador, Mr. Harsh Sharma. And now, it is my great honor to welcome our keynote speaker for today, Dr. Manmeet Kaur, Innovation Ambassador, an accomplished academician and guide who has significantly contributed towards promoting research and innovation. Ma'am, we are truly grateful for your presence and for sparing your valuable time to guide us today. Let's welcome all our dignitaries with a huge round of applause. I also extend a warm welcome towards our faculty members and student innovation ambassador who are present here and making this event more enthusiastic. In today's competitive academic world, research and publication are not optional, they are essential. Many students have innovative ideas but hesitate because they do not know how to start writing a research paper, how to structure it properly, how to select a credible journal, how to peer review system work. This workshop is designed to provide clarity on all these aspects. It aims to develop research writing skills, promote ethical academic practices, guide students in journal publication, encourage innovative thinking, build confidence among budding nurturers. Under the guidance of Institution's Innovation Council and R&D Cell, our college continuously strives to cultivate a strong research culture, and today's session is another step in that direction. Now, it is my great honor to formally introduce our keynote speaker for today, Dr. Manmeet Kaur, an innovation ambassador, has been actively involved in promoting research, innovation, and entrepreneurship in academic institutions. With her vast experience in guiding students and faculty members in research methodology and publication processes, she has inspired many young researchers. Her expertise in research writing, journal selection, and academic ethics makes her the perfect mentor for today's workshop. Ma'am, I warmly invite you to address the gathering and share your valuable insights. बेटा आप आई थिंक सब साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं एंड एनईपी के अंडर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेटा हमें जो ग्रेजुएशन की डिग्री देती है फॉर द ऑनर्स 4 इयर्स, ठीक है। आप जैसे 3 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट ईयर 4th ईयर भी करते हैं तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन्स ले सकते हैं। और आपको पता है कि ड्यूरिंग अगर आप आगे एजुकेशन फील्ड में रहना चाहते हैं और कॉलेजेस में प्रोफेसरशिप में आना चाहते हैं, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू राइट सम रिसर्च पेपर्स, ठीक है। और उसके लिए किस तरह से रिसर्च पेपर लिखना है, क्या उसमें एथिक्स है, किस तरह से पब्लिकेशन होना चाहिए, तो आज के लेक्चर का मेन मुद्दा यही है। तो अगर आप इसको आज से ही समझ लेंगे तो आराम से, क्योंकि साइंसेस में बच्चा बहुत रिसर्च में जाता है हमारा, तो रिसर्च की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो सकता है
और आपको ये भी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से पब्लिश करवाने अपने पेपर्स। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा पॉइंट जो मैम बता रहे हैं, और किस तरह से हम एक पेपर को पब्लिश करवाते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या एथिक्स का उसमें ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। राइट, आइए, वेलकम मनमीत मैम। Please viewers, do round of applause. Good morning, everyone. I hope you all are doing very well. It is my immense pleasure to interact with you all today. I feel very happy to be here and to discuss something that is extremely important for your academic growth and your future career. So today's session is about research paper writing and publication support. Many students feel that research writing is a difficult process, or it is only meant for PhD scholars and higher dignitaries. But that is not true. You can also write. अब तो गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव्स भी चलाए हैं कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी रिसर्च कर सकता है, मास्टर स्टूडेंट्स भी डिसर्टेशंस पे, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अगर हमें रिसर्च राइटिंग करनी है तो हमें स्टार्ट कैसे करना है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि इनिशियल प्रोसेस क्या है, कि हमें रिसर्च पेपर राइटिंग इज अ स्किल। यू कैन डेवलप दिस स्किल विद योर हार्ड वर्क, विद योर प्रैक्टिस। यू नीड अ प्रैक्टिस। जैसे मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च राइटिंग भी एक ऐसा स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू हैव heard about research paper? Can anyone tell me about what is research paper? मैम, ड्यूरिंग PhD और मतलब रिसर्च वर्क जब हम करते हैं तो उसे एक पेपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना कि हमने क्या रिसर्च किया, उसके क्या रिजल्ट्स हैं। So let us first understand what research actually means. Research means finding the answer to the questions. आप अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में कोई कमी है या ये चीज़ ऐसे नहीं तो अगर मैं दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, दैट इज़ योर रिसर्च। सर्च करते जाना, दोबारा से सर्च करते जाना, दैट इज रिसर्च। ओके, whenever you start asking questions, whenever your curiosity develops, here is the point only when your research skills develop in your mind. तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। So today we will discuss how to begin research writing. हम research writing initiate कैसे करेंगे? How to identify a research problem. Initiate तभी करेंगे ना जब कोई problem आपको दिखाई देगी। Structure of a research paper. Research writing करने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। पता ही नहीं होगा तो लिखोगे क्या? Publication process. रिसर्च पेपर लिखने के बाद अगला स्टेप क्या है? लिख तो लिया हमने, अब आगे क्या? पब्लिश भी तो करना है उस रिसर्च को। Peer review. Peer review is another process which is a part of your publication process. Common reasons for rejection. ऐसा नहीं है कि आपने पेपर लिखा तो वो पब्लिश हो ही जाएगा, कुछ रिजेक्शंस भी होते हैं। Predatory journals. We will discuss about this term. Useful tools. अब रिसर्च पेपर लिखेंगे तो कुछ टूल्स भी तो होंगे ना। Better, please. Disturb ना करें, better. So now we will understand why research writing is important. Research writing plays a very crucial role in higher education. जैसे कि मैम ने आपको बताया, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी रिसर्च की तरफ जा सकता है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स तो रिसर्च करते ही हैं, ठीक है।
फेलोशिप्स के लिए आपको रिसर्च की जरूरत पड़ती है. इफ यू वांट टू गो अब्रॉड यू हैव टू अप्लाई फॉर पीएचडी. पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 रिसर्च पेपर होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया. जैसे आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हैं तो कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं. सिमिलरली आपको मिनिमम क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे. आपकी जो डिग्री है, अ डिग्री टेल्स पीपल व्हाट यू हैव स्टडीड, बट योर पब्लिकेशन टेल्स व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी. जब आप पब्लिश करेंगे वो पब्लिकेशन बताएगी आपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग ऑन नैनो मटीरियल्स विद एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, तो मेरा बॉर्डर एस्पेक्ट क्या होगा कि मैं एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस को टारगेट करती हूँ कि मुझे सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए, मैं नैनो मटीरियल्स इसके लिए डिज़ाइन करती हूँ. ठीक है. So this is a major difference. When you publish research, you becomes the part of global knowledge. People read it, cite it, and build upon it. This is how knowledge grows. ऐसे ही आपकी knowledge grow करती है. Research सिर्फ marks या degrees के लिए नहीं होती, research contribution के लिए होती है. So different type of manuscripts. Manuscripts हम research articles को ही बोलते हैं. We have मेजर डिफरेंसेस. फर्स्ट इज योर रिव्यू पेपर, जिसको आप दोबारा से, नाम से ही पता चल रहा है रिव्यू, हम दोबारा से व्यू कर रहे हैं. रिसर्च आर्टिकल्स, शॉर्ट कम्युनिकेशंस, केस स्टडीज एंड कॉन्फ्रेंस पेपर. रिव्यू पेपर कौन सा पेपर होता है? सपोज बहुत सारे रिसर्चर्स बहुत सारी फील्ड्स में काम करते हैं. ऐसा नहीं है अगर मैं नैनो मटेरियल्स पे काम कर रही हूँ तो दुनिया में कोई और काम नहीं कर रहा. बहुत सारे लोग काम करते हैं. अगर मुझे काम स्टार्ट करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस टॉपिक पे इससे पहले क्या काम हो चुका है. मैं उसको रिव्यू करूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि आगे आने वाले गैप्स कौन से हैं. मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान कैसे करूंगी. अगर मुझे गैप्स पता होंगे तभी तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर पाऊंगी ना. आप डिफरेंट रिसर्चर्स की रिसर्च को व्यू करके एक ही पेपर में, एक सिंगल पेपर जब पब्लिश करते हैं, दैट इज योर रिव्यू पेपर. दिस इज नॉट योर ओरिजिनल फाइंडिंग्स. आप दूसरों के पेपर को साइट करके एक नया पेपर निकालते हैं, दैट इज रिव्यू पेपर. ओके. नेक्स्ट वी हैव रिसर्च आर्टिकल्स. रिसर्च आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आप अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करके एक पेपर की फॉर्म में पब्लिश करते हैं. आप क्या मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. अगेन आई एम सेइंग, अगर मैं नैनो मटेरियल्स पे काम कर रही हूँ, मेरे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं नैनो मटेरियल्स डिज़ाइन करने के लिए. वी हैव सोल जेल, को प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोथर्मल, सॉल्वोथर्मल. तो मैं क्या करूँगी, मेरी टेक्निक है. अगर मैं इंडिया में नैनो मटेरियल्स बना रही हूँ, सेम ही मटेरियल के नैनो मटेरियल्स अब्रॉड में भी बन रहे होंगे, राइट. वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होगा, इंडिया का एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है. तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस तो आएगा ना रिजल्ट्स में. क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारी रिसर्च को इफेक्ट करते हैं या नहीं? कोई बताएगा? क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारी रिसर्च को इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? टेम्परेचर अलग होगा वहाँ, यहाँ का टेम्परेचर अलग है. ऑटोमेटिकली हमारे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा. अगर मैं बोलूँ मैंने गिलोय पे काम किया, अब्रॉड में भी कोई गिलोय पे अगर काम कर रहा है, उसने नैनो मटेरियल्स बनाए, उसने जब उसका स्ट्रक्चर एनालाइज किया तो स्ट्रक्चर में नैनो रोड्स आए. मैंने वही सेम मटेरियल, सेम मेथोडोलॉजी यूज की, बट मेरे तो नैनोस्फीयर्स बने. तो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज माय नोवेलिटी कि मैंने सेम मटेरियल के साथ काम करके नैनोस्फीयर्स बनाए, राइट. एक बार आपने नैनोस्फीयर्स बना लिए, देन यू हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन. क्या आपके रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल हैं? ऐसा तो नहीं है गलती से नैनोस्फीयर बन गए. पता भी है कौन सा टेम्परेचर कंडीशन पे जाके वो नैनो मटेरियल्स बने होंगे या नैनोस्फीयर्स बने होंगे. ठीक है. तो ऐसा रिसर्च पेपर जिसमें आप अपनी फाइंडिंग्स, अपनी मेथोडोलॉजी दिखा रहे हैं, दैट इज योर रिसर्च पेपर. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट कम्युनिकेशन. शॉर्ट कम्युनिकेशन वो होते हैं जो रिसर्च पेपर का एक मिनी वर्जन होता है, बस उसमें भी आप न्यू फाइंडिंग्स, न्यू रिजल्ट्स ही पब्लिश करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज केस स्टडी. केस स्टडी जो हमारे हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, जो किसी पीपल पे या किसी
हिस्टोरिकल उस पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी पर्सन पे रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज कम अंडर द केस स्टडीज। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स केस स्टडीज करते हैं, मेरे ख्याल से कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी केस स्टडीज करते होंगे, करते हैं ना। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंसेस का नाम सुना है आपने? अभी आपको साइंस डे में एक पोस्टर डिजाइन करने के लिए बोला गया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर डिजाइनिंग द रिसर्च पोस्टर्स? तो कोई बताएगा कॉन्फ्रेंस क्या होता है? किसी ने यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है? यस, प्रज्ञा ने अटेंड की है। प्रज्ञा विल टेल यू व्हाट इज कॉन्फ्रेंस पेपर। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्या होते हैं, वहाँ पे हमने जो भी रिसर्च वर्क किया होता है हम वहाँ पे अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करते हैं। एक जुडिशरी होती है जो हमारे रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस पुट अप करती है कि लाइक मतलब हर एक फील्ड के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। लाइक मुझसे पूछा गया था कि वाई यू चूज दिस स्पेसिफिक टॉपिक। तो इस तरीके से वो हम वहाँ पे फिर अगर हमारे कॉन्टेक्ट्स बिल्ड होते हैं हम आगे उनसे कांटेक्ट करके फर्दर स्टडीज़ के लिए उनसे इंटर्नशिप अवेल कर सकते हैं। तो और जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो पोस्ट जॉब के लिए उनके साथ थोड़ा लाइक इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हम अपने रिसर्च का एक छोटा वर्जन प्रेजेंट करते हैं जो भी हमने अब तक की हुई है। थैंक यू। इससे क्या पता चला आपको? आप भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो आप लोग भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी रिसर्च राइटिंग आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ईच टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू द नॉलेज इन डिफरेंट वे एंड द बिगिनर्स ऑफन स्टार्ट विद रिव्यू करके उसको एक सिंगल पेपर में पब्लिश करना है। तो ये तो आप लोग कर सकते हो, रिव्यू करना तो स्टार्ट कर सकते हो ना। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर कैसा होता है? जनरली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है रिसर्च पेपर का, वी हैव टाइटल। टाइटल होना जरूरी है। आपका नाम है ना, सबका नाम है यहाँ पे। अगर मुझे किसी को बुलाना है तो मैं उसके नाम से बुलाऊंगी। अगर मुझे कोई रिसर्च पेपर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी? मुझे टाइटल कुछ कीवर्ड्स पता होंगे तभी तो फाइंड आउट कर पाऊंगी ना। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, methodology, results and discussion, conclusion and references. So now इससे हमें क्या पता चला कि each research paper follows a systematic manner. Systematic manner होना बहुत ज़रूरी है so that readers can understand it easily. हम जैसे readers जिसने कभी research ही नहीं की, अगर उसने कोई research paper read करना है, स्ट्रक्चर होगा तभी तो हम रीड कर पाएंगे ना। नहीं तो पहली बात तो सर के ऊपर से जाता है, समझ में भी नहीं आता क्या हुआ। जब तक उस रिसर्च पेपर को 2 से 3 बार रीड नहीं करोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा उसने क्या बोला। दैट इज वाई रीडिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग इज नॉट कि फ़ोन में आपने रीडिंग कर ली। रीडिंग, रिसर्च पेपर की रीडिंग करने के लिए प्रिंट आउट निकालो, उसका अंडरलाइन करो लाइंस को, तभी तो समझ पाओगे कि क्या रीड कर रहे हो और क्या हो रहा है और क्या कीवर्ड्स है। So the first part is title. Title is the first impression of your research. ठीक है? It should be clear, specific and informative. Clear होना चाहिए, specific होगा और informative होगा। Informative होगा तभी तो पता चलेगा रिसर्च पेपर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। It should tell the reader what the research is about. यही तो बोला कि रिसर्च किस बारे में हो रही है। मैं बोल रही हूँ कि मैंने नैनो मटेरियल बनाए ग्रीन सिंथेसिस के और मैंने इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस की उसकी सनलाइट में। तो मैंने उसका टॉपिक बना दिया नेचुरल सनलाइट डिराइव फोटो केमिकल्स विद ग्रीन सिंथेसिस। ऐसे करके मैंने उसका टाइटल डिजाइन कर दिया। तो उससे पता चल रहा है ना कि वो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन किस में की, सनलाइट में की, ग्रीन सिंथेसिस से बनाए और ये वाले पार्टिकल्स बनाए। आफ्टर दैट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट। द एब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ द इंटायर रिसर्च पेपर। आपके रिसर्च पेपर का जो निचोड़ होगा वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? द एब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट समरी, एज आई सेड, इट इंक्लूड्स द प्रॉब्लम, उसका ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। जनरली क्या होता है जब लोग रिसर्च पेपर लिखना शुरू करते हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, बट कभी भी रिसर्च पेपर एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट इट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो लास्ट में लिखा जाता है, जब आपके रिजल्ट्स भी आ गए, आपने मेथड भी डिजाइन कर लिया, तभी तो एब्स्ट्रैक्ट। निचोड़ क्या हुआ? जब आपने सारी रिसर्च कर ली। लोग क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई ये मेरा टाइटल है तो यही तो होगा ना, ये तो आएगा ना, ऐसा नहीं होता।
आपको पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन से लिखोगे तभी तो प्लान कर पाओगे ना ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ही नहीं होंगे तो अब्स्ट्रैक्ट का क्या करोगे? आफ्टर दैट वी हैव इंट्रोडक्शन पार्ट। द इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन्स द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, व्हाई द रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, what has already been done and what gaps still exist। सबसे पहले मैंने यही बोला, gaps आपको कौन बताएगा? इंट्रोडक्शन बताएगा। At the end of introduction, the research objective is clearly written। इंट्रोडक्शन हो गई, अब तो आप डिजाइन कर सकते हो ना कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, ये काम पहले नहीं हुआ, अब मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं उसको अपने ऑब्जेक्टिव में डाल सकती हूँ। This section convinces the reader that the study is meaningful। यही एक सेक्शन है जो रीडर को कन्विंस करता है कि हाँ इसने कुछ नया, कुछ नोवेल किया होगा। अपनी इंट्रोडक्शन में ही आप ऐड करोगे ये लाइन कि दिस इज द नोवेलिटी ऑफ माय वर्क, कि ये पहले कभी नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट पेपर आई हैव बीन रिपोर्टेड दैट नैनो मटेरियल्स हो, कुछ भी हो जिस पे भी आप काम कर रहे हो। आपकी इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन होनी चाहिए। अगर आप नहीं लिखोगे ये लाइन और जब आप पब्लिश करने के लिए जाएंगे पेपर, तो रिव्यूअर का पहला कमेंट यही आएगा कि आपके पेपर में कोई नॉवेलिटी नहीं है, तो योर पेपर इज रिजेक्टेड। देन वी कम्स टू द लिटरेचर रिव्यू। दिस सेक्शन डिस्कसेस द प्रीवियस रिसर्च। जैसे हम रिव्यू पेपर करते हैं, अब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर लिए आपने, अब आप क्या करोगे? रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। या मैं ढूंढती हूँ, स्पेसिफिक ढूंढूंगी अब मैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि कौन कौन से पेपर अवेलेबल है। अगर मैं नैनो मटेरियल्स की बात कर रही हूँ तो नैनो मटेरियल्स का पहला पेपर कब रिपोर्ट हुआ था, मुझे वो पता होना चाहिए। हैव यू एवर रेड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम? किसने बोली है ये लाइन? साइंसेस के बच्चे बैठे हैं, पता होगा तुम लोगों को। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। नहीं पता तो लिख लो और सर्च करके आना। फैकल्टी आगे बैठी है, फैकल्टी पूछेगी तुमसे कि तुमने सर्च किया या नहीं किया। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। मैम जब आप क्लास लेंगे तो प्लीज पूछना कि ये लोग सर्च करके आए हैं या नहीं सर्च करके आए हैं। A strong literature review shows that the researcher understand the field deeply। आपका लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो सामने वाला समझ पाएगा कि हाँ भाई इसने अच्छा लिटरेचर रिव्यू किया। दैट लिटरेचर रिव्यू अच्छा है तो पेपर अच्छा निकलेगा। रिसर्च अच्छी होगी तभी तो नया पेपर डेवलप कर पाओगे ना। रिसर्च ही नहीं की, चैट जीपीटी से निकाले, अरे बता ना भाई कौन कौन से पेपर इसमें पब्लिश हो चुके हैं। वो तो झूठ भी बोलता है, वो तो ऐसे पेपर भी देगा तुम्हें जो कभी पब्लिश ही नहीं हुए, देता है ना, झूठ बोलता है ना। पकड़ते हो ना चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी भी तुम जैसे लोगों ने बनाया है, किसी यंग रिसर्चर ने चैट जीपीटी बनाया होगा और तुम उसी पे रिलाई कर जा रहे हो। बहुत सारे पेपर को डिक्लाइन भी कर दिया Yes. जाता है, उसमें निकाल देते हैं। अब वो आपको दिखा रहा होता है। अब तो यूनिवर्सिटीज एआई डिटेक्शन भी मांग रही हैं कि कहीं एआई से तो पेपर लिख के जर्नल में सबमिट तो नहीं कर दिया। पहले तो सिर्फ हमारे टाइम पे प्लेगरिज्म चेक होता था, तब तो चैट जीपीटी था भी नहीं, तो हमें तो खुद ही सोचना पड़ता था। अब तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया ना, डाल ना चैट जीपीटी में, एक वर्ड डाल सारा पेपर देगा तुझे। होता है ना ऐसे। आपने कौन सा मेथड लगाया? मैं कहती हूँ मैं सोल जेल पे काम करती हूँ, मैं को प्रेसिपिटेशन पे काम करती हूँ, मैं ग्रीन सिंथेसिस पे काम करती हूँ। ये मेरा मेथड है। उस मेथड पे कितना टेम्परेचर रखना है, अपने नैनो मटेरियल्स कितने प्रेशर पे बनाने हैं, मफल फर्नेस में उसको कितनी देर रखना है, उसको ड्राई कितना करना है, वो मेरे टेम्परेचर्स, मेरे इनिशियल्स हैं, ठीक है, वो मेरी मेथडोलॉजी है। सपोज कोई 70 पे बना रहा है तो मैं 50 पे बना के दिखा देती हूँ। किसी की एफिशिएंसी 90% कोई बोल रहा है कि हमने ग्रीन सिंथेसिस से नैनो मटेरियल बनाए, उसकी एफिशिएंसी 90% आ रही है। मैं बोल रही हूँ मैंने वही ग्रीन सिंथेसिस से सेम मेथडोलॉजी से बनाई, मेरी एफिशिएंसी 95% आ रही है। तो दैट इज माई नोवेलिटी, वो मेरे पेपर की नोवेलिटी है ना। देन वी कम टू द रिजल्ट्स। हियर द रिसर्चर फाइंडिंग यूजिंग रिजल्ट्स। जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने नैनो मटेरियल्स बना भी लिए, आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन भी करा ली, अब आगे रिजल्ट्स की बारी। यहाँ तो आप उसको टेबल की फॉर्म में दिखाते हो। आप लोगों ने अगर रिसर्च पेपर देखे होंगे तो कुछ टेबल्स बने होते हैं उसके अंदर कि इतने टेम्परेचर पे मैंने 3 सैम्पल्स बनाए, इन सैम्पल्स पे ये उसका वेट आया, ये उसकी एफिशिएंसी आई। आप उसको ग्राफ्स की फॉर्म में दिखाते हो
मैं बताऊंगी अभी कि ग्राफ कैसे बनते हैं, टेबल कैसे बनते हैं इसके अंदर, रिसर्च पेपर के अंदर, ठीक है। So only findings are presented here in the results and discussion. This is where the researcher explained what the result meaning. अब रिजल्ट आ गया, उसको बताना भी तो पड़ेगा ना रीडर को। रीडर तो नया है बेचारा, उसको क्या पता। उसको तो आपको ऐसे बताना है जैसे आप एग्जामिनर को पेपर में बता के आते हो। जितना हम पढ़ के जाते हैं सब लिखाते हैं, पूछा है क्वेश्चन में, नहीं पूछा, हमारी सिरदर्दी नहीं है। हमें तो सब बता के आना है जो हम पढ़ के आए हैं। एग्जामिनर जाने नंबर देता है, दे, नहीं देता ना दे, शीटें भरा भाई, ऐसे करके आते हो ना। इसमें ऐसा नहीं करना। जितना तुम्हारा रिजल्ट आया प्रिसाइजली आपने उतना ही रिजल्ट बताना है अपने पेपर में कि भाई मैंने इतने टेम्परेचर पे बनाए, ये मेरा वेट आ रहा है। रिव्यूअर को कंफ्यूज नहीं करना, ना रीडर को कंफ्यूज करना है। रीडर अगर कंफ्यूज होगा फिर नहीं बढ़ता वो तुम्हारा पेपर, फिर नहीं आती साइटेशन, फिर नहीं बनती एकेडमिक प्रोफाइल, फिर देखते रहना इधर उधर। इतनी मेहनत भी की और क्या रिजल्ट मिला। साइटेशन पता है बेटा क्या होता है? मैम बार बार वर्ड यूज करे साइटेशन, पता है क्या होता है? आप बताओ। मैं तो आगे आई विल एक्सप्लेन, आगे मैं अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से सारा एक्सप्लेन करूँगी। बताइए साइटेशन क्या होता है? जब हम टेक्स्ट के बीच में, हमारे रिसर्च पेपर के टेक्स्ट के बीच में ना कुछ लिखा आता है, मेरा पेपर है मनमीत कौर एट ऑल 2024, दैट इज अ साइटेशन। मैंने ये लाइन उस पेपर से उठाई और मैंने अपने पेपर में साइट की, दैट इज योर साइटेशन। जब आप घर जाके कोई रिसर्च पेपर रीड करेंगे ना, आप देखना उसमें लिखा होगा, अगर वो हर्ष शर्मा का पेपर है, शर्मा हर्ष एट ऑल 2025, दिस इज योर साइटेशन। किसी का भी पेपर एट ऑल का मतलब क्या है? जितने भी ऑथर्स ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है वो सब उसके अंदर आ गए, एक एक नाम नहीं आता। आ गया समझ बेटा? आप जितनों का आप दिखा रहे हो अपने पेपर में वो साइटेशन ही है आपका। आपने उनको आपने ऑप्ट किया है, आपने वो देखा है, आपने वो पढ़ा है पेपर, राइट? देन वी कम टू द कंक्लूजन। एज आई सेड, एब्स्ट्रैक्ट आपका क्या बताता है? निचोड़ बताता है पेपर का। कंक्लूजन में हमारे जितने भी रिजल्ट आए, मैंने ये मेथोडोलॉजी यूज़ की, मेरा ये रिजल्ट आया 92% एफिशिएंसी, 95% एफिशिएंसी, जो भी है आप उसको कंक्लूड कर देंगे 5 से 6 लाइन्स में, ठीक। फाइनली हम रेफरेंसेस की बात करते हैं। लास्ट में हमारा एक कॉलम होता है जिसमें हम रेफरेंसेस इंक्लूड करते हैं। ऑल दी सोर्सेज, जहाँ से भी आपने मटेरियल उठाया, कोई डायग्राम उठाया, कोई लाइन उठाई, कुछ भी उठाया, वो आपने साइट किया ना ऊपर, वो फिर वो किस में आपको रिफ्लेक्ट करने हैं? रेफरेंसेस में, ठीक है। वो आपको रेफरेंसेस में डालना ज़रूरी है। अगर आप रेफरेंसेस में उस ऑथर का पेपर एक्नॉलेज नहीं करोगे, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डाल देगा आपके ऊपर कि मेरे पेपर की लाइन भी यूज़ कर ली और मुझे एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी। तो आपके मॉरल और एथिक्स यही कहते हैं, अगर रिसर्च में आपने किसी से भी हेल्प ली है, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट पर्सन, अगर आपने उससे छोटी सी भी हेल्प ली है। मैं कहती हूँ, मैंने अपने टाइम पे मैंने मक्फल फर्नेस यूज़ करनी थी, मुझे मक्फल फर्नेस नहीं मिली अपने डिपार्टमेंट में, मुझे सिविल डिपार्टमेंट में जाना पड़ा, तो मुझे एक्नॉलेज करना पड़ा ना सिविल डिपार्टमेंट को कि हाँ भाई मैंने उनसे हेल्प ली थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू द डीन कि जिसने मेरे को मक्फल फर्नेस यूज़ करने की परमिशन दी। So you have to acknowledge each and every person from where you have taken the help. That is your moral and ethics. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को कोई आपका पेपर बिना साइट करे, आपके ही पेपर को पैराफ्रेज करके पब्लिश कर दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फिर ऑथर को कैसे अच्छा लगेगा? वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डालेगा ना आपके ऊपर। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू स्टार्ट राइटिंग। कैसे राइटिंग स्टार्ट होती है? तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के साथ बिगिन करना है। प्रॉब्लम क्या है ये आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग। प्रॉब्लम होगी तभी तो कुछ लिख पाओगे, प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं है, ठीक है। सो द प्रोसेस बिगिन विद चूजिंग एन प्रॉब्लम, एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रीडिंग रिसर्च पेपर्स, आइडेंटिफाई योर रिसर्च गैप, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग मेथोडोलॉजी। एक ट्रैक बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, उसके बाद आप रिटन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर राइटिंग। द मोर यू रीड द बेटर यू अंडरस्टैंड। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना
ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्लान कर सकती हूँ, या मुझे अगर रिसर्च पेपर लिखना है तो मैं रिसर्च पेपर किस फील्ड में लिख सकती हूँ, कौन से एप्लीकेशंस को मैं टारगेट कर सकती हूँ। ये देखो लिटरेचर रिव्यू आप कैसे कर सकते हो। देखो मैंने अपनी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल में लगाई है। इस प्रोफाइल में कुछ पेपर्स नज़र आ रहे हैं, सब नज़र नहीं आ रहे, स्क्रीनशॉट। अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है तो कैसे करोगे, गूगल स्कॉलर पे जाके आप पेपर के टाइटल कीवर्ड्स डाल के ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। अगर आप नैनो मटेरियल्स पे लिखेंगे, प्लेंटी ऑफ रिसर्च पेपर्स आर देयर। आपने किस पे काम करना है, दैट इज योर चॉइस। So after writing the research paper, your next step is publication process. अब publication करनी है तो क्या होगा, सबसे पहले पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशिंग हाउस ढूंढना पड़ेगा कि किस में पब्लिश कर सकते हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ पब्लिशिंग हाउस। एल्सवेयर का नाम सुना है किसी ने, स्प्रिंजर नहीं सुना। तो पहला काम क्या है, हमें जर्नल सिलेक्ट करना है। जर्नल कैसे सिलेक्ट करोगे, अगर आप केमिस्ट्री का पेपर लिख रहे हैं, सपोज आपने हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस पे पेपर लिखा, तो आपको जर्नल वैसा सिलेक्ट करना है जिसके एम्स और ऑब्जेक्टिव आपके पेपर के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो द ऑथर गाइडलाइंस। जब आपने सिलेक्ट कर लिया जर्नल, तो कुछ गाइडलाइंस तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वो जो आप, जैसे वो आपको बोलेगा रिसर्च पेपर रिफ्रेम करके, तो आपको वैसे ही रिफ्रेम करना पड़ेगा। रिफ्रेम इज लाइक, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट एक फाइल में मांग रहा है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलग सबमिट करना है, टाइटल अलग सबमिट करना है, पेपर अलग सबमिट करना है और रेफरेंसेस अलग सबमिट करना है। कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि आप एक ही फाइल में पीडीएफ बना के पूरा रिसर्च पेपर अपलोड कर दीजिए। तो दैट इज योर चॉइस कि आपने किस जर्नल में पब्लिश करना है। आफ्टर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन देयर इज पीर रिव्यू। पीर रिव्यू का नाम सुना है आप लोगों ने। पीर रिव्यू ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडिटर आपका पेपर चेक करता है, ठीक है। और पेपर चेक करने के बाद अगर उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके जर्नल के साथ मैच हो रहे हैं, अगर जर्नल के साथ पेपर आपका जर्नल के साथ मैच हो रहा है, तो वो क्या होगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट, अब वो रिव्यूअर्स असाइन करते हैं डिफरेंट। सपोज आप में से ही, हम ही फैकल्टी में से वो किसी रिव्यूअर को वो आपका पेपर भेज देता है रिव्यू करने के लिए। रिव्यूअर क्या करेगा, वो चेक करेगा। सबसे पहले उसका क्या काम है, वो चेक करेगा क्या आपका पेपर नोवेल है या नहीं। इंट्रोडक्शन में हमने नोवेलिटी की बात की थी कि हमें नोवेलिटी इंक्लूड करनी है। अगर आपका पेपर नोवेल है तो वो क्या करेगा, फिर वो पूरा पेपर रीड करेगा। पूरा पेपर रीड करने के, जैसे आपके पेपर्स चेक होते हैं, सेम प्रोसीजर है। वो पूरा पेपर रीड करेगा, अगर उसको लगता है ये पेपर इस जर्नल में पब्लिश हो सकता है, तो वो आपको कमेंट्स देता है। कमेंट्स जैसे टीचर्स बताते हैं ना, ये टेस्ट में ये गलती है तो ये इम्प्रूव होनी चाहिए, वैसे ही आपको वो कमेंट्स देते हैं। वो कमेंट्स आपको मेल के थ्रू रिसीव होते हैं। अगर आप उन कमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर आपने कर दिया, देन योर पेपर इज एलिजिबल फॉर द पब्लिकेशन, अदरवाइज इट गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो केसेस होते हैं, माइनर रिवीजन और मेजर रिवीजन। माइनर रिवीजन में ज़्यादा कुछ वो होता नहीं है, वो बोल देते हैं आपको ये पेपर साइड कर दो या ये पेपर डाल दो, ये पेपर आपके पेपर से मैच कर रहा है, ठीक है। मेजर रिवीजन कौन सी होती है, जिसमें उसको लगता है आपके नोवेल तो है पेपर, पर उसमें रिजल्ट्स लैक कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर उसके बाद जब आपके पास कमेंट्स रिसीव होते हैं, आप उनको ठीक करके दोबारा से जर्नल में सबमिट करते हैं, देन योर पेपर विल बी एक्सेप्टेड होगी। डन। सो पीर रिव्यू का पर्पस है कि रिसर्चर को डिस्करेज नहीं करना हमने, पर उसमें उसकी जो गलतियां हैं उसको इम्प्रूव करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे पेपर हम बहुत जगह पेपर भेजते हैं, वो रिजेक्ट हो के वापस आते हैं, बट रिजेक्शन के साथ आपके पास कमेंट्स भी आते हैं। दैट कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो कमेंट्स उसके अंदर अपने पेपर की जो कमी है ना, आपको वो कमेंट्स के ज़रिए आप उसको ठीक कर सकते हैं।
रिजेक्शन इज नॉट कि वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, हो जाएगा एक्सेप्ट, बट इम्प्रूवमेंट्स के साथ एक्सेप्ट हो जाएगा। एक पेपर हमेशा एक ही जर्नल में भेजना है, ऐसा नहीं है 10-12 जर्नल में एक ही पेपर भेज दिया तुमने, ऐसा नहीं होता, एक टाइम पे एक ही जर्नल में भेजना है। हाँ। तो चूजिंग द राइट जर्नल, जैसे मैंने अभी बताया, आपका एम और स्कोप मैच करना चाहिए उस जर्नल के साथ। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट फैक्टर, जैसे आपको नंबर मिलते हैं, जर्नल्स को भी नंबर मिलते हैं, वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है, जितने ज़्यादा नंबर उतना हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल। साइंसेस में तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर ही 5 से स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब आपका कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो आपका जर्नल क्या यूजीसी से इंडेक्स है, यूजीसी के अंदर वो इंडेक्स है या नहीं, आपको चेक करना है क्या वो यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। जो काफी सारे निकाल दिए तो यूजीसी का भी खत्म कर दिया। यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको चेक करना पड़ेगा। आपकी यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड कर रही है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि हम किस जर्नल में पेपर पब्लिश कर सकते हैं। इंडेक्सिंग जर्नल ही होती है, स्कॉपस इंडेक्सिंग होती है, वेब ऑफ साइंस होती है, साइंस वालों के लिए होती है SCI इंडेक्सिंग जर्नल, ठीक है। जब आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्सिंग का एक अलग ही टैब होता है, आप टैब पे जाके क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन फीस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर भी हम लिखें, फीस भी हम दें हैं, और जर्नल पब्लिश कर रहा है, ठीक है, जर्नल अपने नाम से दिखा रहा है, पेपर लिख रहा है ऑथर, और ये फीस भी हमसे लेते हैं कि लाओ जी आप पैसे दो, आपका पेपर हम पब्लिश करके ऑनलाइन देंगे। इसमें भी हमारे पास 2 तरीके के जर्नल्स होते हैं। जब आप जर्नल का पेज खोलेंगे ना आपको पता चलेगा। वी हैव 2 टाइप्स, ओपन एक्सेस जर्नल, हाइब्रिड जर्नल। ओपन एक्सेस जर्नल वो जर्नल होते हैं जो पेड जर्नल जिनको हम कहते हैं, हमने पैसे दिए और आपका पेपर अगले दिन ही ऑनलाइन आ गया, दैट इज ओपन एक्सेस जर्नल। दूसरा है हमारे पास हाइब्रिड जर्नल। हाइब्रिड जर्नल में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पब्लिशिंग होती है, बट उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपका जो पेपर है वो आपको तो PDF भेज देंगे, बट बाकियों को अगर वो पेपर रीड करना है तो वो डॉलर्स में या यूरोज में पे करेंगे, तब वो पेपर रीड कर सकते हो। इसका बेनिफिट किसको है, जर्नल को ही तो है, जर्नल ही तो पैसे कमा रहा है। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि या तो आपका पेपर 2 या 3 साल बाद ऑनलाइन आ जाएगा, तब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप रीड कर सकते हैं, बट अगर किसी को अभी रीड करना है तो यू हैव टू पे टू द जर्नल, देन ओनली यू कैन रीड द आर्टिकल। तो हमारे पास 2 तरीके के जर्नल्स हो गए ना, कौन कौन से, ओपन एक्सेस एंड वेरी गुड। तो पब्लिकेशन फीस की बात हो गई, उसके बाद है रिव्यू टाइम। ऐसा है कि पेपर तो दे दिया जर्नल में, पेपर तो दे दिए हमने, यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे रही है 6 महीने बाद, जब हम नए पेपर देने जा रहे हैं तो आपको रिव्यू टाइम भी चेक करना है कि जो जर्नल है वो आपका पेपर रिव्यू करके कितने दिन में आपको रिजल्ट देगा कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। एक्सेप्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हो रहा है तो हम किसी और जर्नल में भेजें ना, यू शुड ट्राई इन अनदर जर्नल। तो आपको उसका रिव्यू टाइम भी देखना है। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो विद इन अ वीक और विद इन 12 डेज आपको रिजल्ट दे देते हैं, वो उन्होंने मेंशन किया होता है अपनी साइट पे। जब आप जर्नल खोलेंगे ना उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं बाय टैब्स की फॉर्म में। आज जाना और जर्नल, कोई भी जर्नल खोल के देखिए, ठीक है। आफ्टर दैट beware of predatory journals. Have you ever read about predatory journals कि predatory journals कौन से होते हैं? देखो, अगर आपको जर्नल्स ढूंढने हैं, ये कुछ लिंक्स हैं जर्नल फाइंडर्स के, यू कैन टेक द पिक्चर, तो आप यहाँ जाकर जर्नल्स ढूंढ सकते हो। ये जर एंड एल्सवेयर जर्नल का नाम अलग अलग हो सकते हैं, पब्लिशिंग हाउस आपका सेम हो सकता है, बट जर्नल अलग अलग होंगे हमेशा। वी हैव वेब ऑफ साइंस, वी हैव IEEE, different journals and different publication houses.
So we have predatory journals. देखो गधा कौन है? Author. और publish कौन कर रहा है? Journal. और पैसे भी हम दें, हैं, दिमाग भी हम लगाएं, 1-2 साल लगाएं पेपर लिखने में, और पैसे कौन कमा रहे हैं? जर्नल. प्रीडेटरी जर्नल कौन से जर्नल्स होते हैं? वो आपको लालच देते हैं. आजकल फेक कॉल्स आती है ना, फेक लिंक्स आते हैं, इस पे क्लिक करो तो इतने पैसे मिलेंगे, डबल हो जाएंगे पैसे. ये भी वही है. ये क्या करते हैं? आपको क्विक पब्लिकेशन का प्रॉमिस करते हैं. और इस पे कौन फंसते हैं? PhD स्कॉलर, जो अपनी यूनिवर्सिटी से सताए हुए बच्चे होते हैं ना, कि हमें तो 4 साल 5 साल के अंदर 2 पेपर देने ही देने हैं. तो वो क्या करते हैं? यार कहीं भी पब्लिश तो हो जाए, कम से कम PhD तो पूरी हो जाए हमारी. तो ये नहीं करना तुम्हें. वो क्या करेंगे? पैसे भी लेंगे और पब्लिश भी नहीं करके देंगे. और अगर इन केस गलती से पब्लिश हो भी गया, 2 साल बाद वो पेपर आउट, रेड मार्क आ जाता है उसके ऊपर, तो वो काउंट ही नहीं होता आपकी PhD सबमिशन में. So publishing in such journals can harm your academic credibility. Therefore, कभी भी किसी भी जर्नल को सिलेक्ट करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना कि उसके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं. ओपन एक्सेस में कर सकते हैं आप पब्लिश फीस देकर, बट ओपन एक्सेस को अच्छे से चेक करना ज़रूरी है. ठीक है? बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं? देखा है कभी जर्नल्स वहाँ रखे हुए अपने? हाँ, तो देखो जरा उनको. नीचे लिखा है ना, क्वालिटी पब्लिकेशन इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन क्विक पब्लिकेशन. योर क्वालिटी ऑलवेज मैटर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वांटिटी. अब्रॉड में किसी को कोई मतलब नहीं है आपने कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस दिए. दे ओनली सी योर क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च. एक भी पेपर लिख दोगे ना 4 साल या 3 साल लगा के, वो आपके 10 पेपर में भारी पड़ता है. पब्लिश करना ही बहुत मुश्किल है. तो हम कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं अपनी रिसर्च राइटिंग में? हम क्या करते हैं? प्लैगरिज्म का नाम तो सबने सुना होगा. अब कौन बताएगा प्लैगरिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्लैगरिज्म? कट कॉपी पेस्ट. हम किसी का पेपर उठाते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं, वर्डिंग्स चेंज करते हैं, चल भाई छाप दे भाई, जो AI कर रहा है तुम्हारा. प्लैगरिज्म. तो आपकी जो प्लैगरिज्म रिपोर्ट होती है, जो यूनिवर्सिटी आपको देती है, वो 10% से नीचे होती है. जैसे आप एक्सपेरिमेंटल एरर निकालते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, एक्सपेरिमेंटल एरर कितना होना चाहिए? 20% से लेस होना चाहिए ना एक्सपेरिमेंट्स में. ऐसे ही आपकी प्लैगरिज्म रिपोर्ट भी कहती है कि 10% से नीचे अगर आपका प्लैगरिज्म है, दैट इज एक्सेप्टेड ओनली. 10% से ऊपर होगा ना, 11 भी हो गया ना, तो यूनिवर्सिटी मानेगी नहीं उसको. ठीक है? आफ्टर दैट पुअर फॉर्मेटिंग. आपकी जर्नल की फॉर्मेटिंग, रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ योर जर्नल. आपका जर्नल आपसे क्या डिमांड करता है? वीक लिटरेचर रिव्यू. सबसे पहले हमने यही डिस्कस, अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करोगे तभी तो अच्छा पेपर दे पाओगे ना. लैक ऑफ क्लैरिटी, नोवेलिटी होनी चाहिए पेपर में. क्लियरली आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं ना. इनकरेक्ट रेफरेंसेस, फेक रेफरेंसेस ऐड नहीं करने. फेक रेफरेंसेस का मतलब समझते हैं? अरे चल तू मेरा दोस्त है ना, तेरा पेपर पब्लिश हो गया, मैं अपने पेपर में डाल देती हूँ तेरी रेफरेंस, तेरा साइटेशन आ जाएगी. तो ये भी नहीं करना. पब्लिशिंग इन जर्नल्स दैट आर not reputable can diminish the credibility of your research and your career. ठीक है? तो अपनी क्रेडिबिलिटी आपके अपने हाथ में है. आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, दैट इज अप टू यू. अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन यूजफुल टूल्स की. क्या कोई पहचान सकता है इनको? किसी ने कभी यूज किए हो? These are reference manager tools. हमने रेफरेंस की बात की ना, अब वो रेफरेंस ऐड कैसे करने हैं, तो उसके हमारे पास टूल्स होते हैं. कुछ टूल्स होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ हमारे पास फ्री होते हैं. ठीक है? सबसे पहला टूल है मेंडले. ये जो रेड वाला है, लिखा भी हुआ है इसके ऊपर मेंडले डेस्कटॉप. हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से. ठीक है? इसमें आप क्या करते हैं, अपने रिसर्च पेपर्स की PDF भी स्टोर कर सकते हैं एज इट इज़. जैसे आपका
वर्ड काम करता है, आप पूरा का पूरा फोल्डर वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। एक फोल्डर बना के ना फाइल पे जाके, ठीक है, तो आपने क्या क्या ऐड करना है, यू कैन ऐड योर फोल्डर्स। आपने फोल्डर्स में अपने रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लिए, पूरा का पूरा फोल्डर आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपको साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी बता देता है। अब आपको 1-2 करके रेफरेंसेस में रेफरेंस टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपने इंसर्ट पे जाना है वर्ड में, बिब्लियोग्राफी के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, सारे के सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको। ऐसा नहीं कि टाइपिंग कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। टूल्स को यूज करो, स्मार्ट वर्क यूज करो, अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सुधारो। नेक्स्ट इज Zotero। Zotero भी एक कम्प्लीटली फ्री ओपन रेफरेंस मैनेजर है, ये वाला, ठीक है। ये भी सेम काम करता है, ठीक। एंड दिस वन इज EndNote। ये आपका पेड वर्जन है, ये यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है या आपके प्रोफेसर जिनके अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं उसका एक्सेस, क्योंकि उनके पास पेड ऑप्शंस होते हैं। यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड करती है वो चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव द कैटेगरी ऑफ ग्रामर चेक टूल्स। राइटिंग अच्छी होगी, ग्रामर ठीक होगी, स्पेलिंग सही होंगे, पंचुएशन सही होगी, तभी तो पेपर पब्लिश होगा ना। तो अगर आपको अपनी ग्रामर चेक करनी है तो आप ग्रामरली पे जा सकते हैं। इसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री है, बट अगर आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए तो आपको पे करना है, ठीक। दिस इज QuillBolt। नीचे लिखा हुआ है ना पैराफ्रेजिंग टूल। यूज कर सकते हैं हम, थोड़ा चिटिंग तो चलता है, थोड़ी चिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा पैराफ्रेज कर सकते हैं, बट ऐसा ही नहीं कि आप उस पर डिपेंडेंट ही हो जाए, ठीक। ये भी इसका बेसिक वर्जन फ्री है, मिल जाएगा आपको, बट आपको अगर प्रीमियम वर्जन चाहिए आप अगेन आपको पे करना पड़ेगा। देन वी हैव प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स। यूनिवर्सिटीज आपके रिसर्च आर्टिकल का प्लेगरिज्म कैसे चेक करेगी, तो उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वी हैव Turnitin, इसका नाम सुना है, Turnitin, है ना। तो ये जो होता है ये यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है। ये आपको क्या करता है, ये आपका पूरा मैन्युस्क्रिप्ट उसमें डालेगा, बस आपने इसमें अपने फिगर्स, आपके टेबल्स और आपके रेफरेंसेस इंक्लूड नहीं करने। तो रेफरेंसेस आउट होते हैं प्लेगरिज्म, क्योंकि वो तो सेम ही आएंगे ना, नाम तो सेम ही है जो पब्लिश हो गया। तो रेफरेंसेस हटा के हम लोग प्लेगरिज्म चेक करते हैं हमेशा। तो वो आपको रिपोर्ट जनरेट कर देगा। कहीं कहीं रेड लाइन्स आएंगी, कहीं ग्रीन आएंगी, कहीं ब्लू आएंगी। रेड का मतलब है मेजरली पार्ट आपने ना पैराफ्रेज करके लिखा है या ऐसी कट कॉपी पेस्ट कर दी, तो वो आपको पूरी रिपोर्ट देता है समरी की फॉर्म में कि आपको इसको चेंज करना है, आपको इसको ये लाइन आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिर आप क्या करते हैं, जब चेक हो जाएगा आपका प्लेगरिज्म, आप दोबारा से रीफ्रेम करके उन लाइन्स को दोबारा से चेक करते हैं अपना प्लेगरिज्म। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये पहले जो ऊपर दो है उर्कुल, ये भी आपका पेड सॉफ्टवेयर है। आपके प्रोफेसर्स के पास एक्सेस होता है, वो आपको प्रोवाइड कर दे तो ठीक है। अदरवाइज जो ओपन सॉफ्टवेयर है ना, स्मॉल टूल्स, ये फ्री चेकर है जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अगर उनको अपना प्लेगरिज्म चेक करना है अपने रिसर्च आर्टिकल का, तो वह यहीं से चेक करेंगे, ठीक है। इनटू बहुत सारे ऑनलाइन खोल लो तो बहुत सारे, हाँ बहुत सारे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा हाँ बेस्ट। सो इन टूल्स की हेल्प से रिसर्च वर्क ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल और प्लेगरिज्म फ्री बनता है। मैनी सक्सेसफुल रिसर्चर्स स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्ट्स, मैनी स्टूडेंट पब्लिश फ्रॉम फाइनल ईयर वर्क, मैनी रिसर्चर फेस मल्टीपल रिजेक्शन बिफोर एक्सेप्टेंस। मैंने अपना पहला पेपर लिखा था ना, मेरा पहला पेपर 10 जगह से रिजेक्ट हुआ। मुझे 1 साल लग गया वो पेपर लिखने में, और वो पेपर पब्लिश होने में 1 साल और लग गया, 2 साल लग गए वो पेपर पब्लिश होने में। बट वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ। पता क्यों? क्योंकि जो कमेंट्स आते थे ना रिजेक्शन के साथ, उन कमेंट्स को हम इंक्लूड करते, इम्प्रूव करते अपने रिसर्च आर्टिकल में। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, एवरी रिसर्च स्टार्ट्स देयर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिगिन योर रिसर्च जर्नी। सो बिफोर आई कंक्लूड, we have the data analysis software, we have data analysis software। तो हम अपना जो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, हम अपना डाटा कैसे एनालाइज करेंगे, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। दैट इज Origin Pro सॉफ्टवेयर।
आपने देखा होगा कि हम जो ग्राफ्स होते हैं ना रिसर्च पेपर्स में, वो बहुत ही सुंदर ग्राफ्स होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि हमने वो पीपीटी में बनाए हैं, हम अपना डाटा इंपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में, वो आपको ग्राफ विद इन अ सेकेंड बना के दे देता है। और रीजन है आपके पास इमेज जे सॉफ्टवेयर, पता है क्या करता है? मैंने नैनो मटेरियल्स बनाए, ये आपके बना देते हैं या उसको एनालाइज करते हैं? ये सिर्फ आपको ग्राफ बना के देगा, एनालाइज आपको खुद करना है। एनालाइज वही आपने डाटा एनालाइज सॉफ्टवेयर, एनालाइज इन द सेंस वो डाटा को एनालाइज करके आपको ग्राफ की फॉर्म में आउटपुट देता है। दैट उसकी एनालिसिस का मतलब यही है। रिजल्ट्स हमारे क्या कंक्लूड हुए वो तो मैं ही बता पाऊंगी ना, मैंने लिटरेचर रिव्यू किया है, सॉफ्टवेयर ने थोड़ी मेरे लिटरेचर रिव्यू किया। मुझे लगा कि कई बार एनालाइजिंग नहीं। इमेज सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने पाउडर नैनो पार्टिकल्स बनाए, अब वो रोड्स बनी है, स्फेयर्स बने हैं, रोज पेटल्स बने हैं या लीव्स बने हैं, तो वो हम किस सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट करेंगे? इमेज जे सॉफ्टवेयर से। डन। आफ्टर दैट इज कैमड्रॉ, तो सबने सुना होगा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कैमड्रॉ यूज करते हैं। सुना है कैमड्रॉ? दिस इज एक्सपर्ट फाइल सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, हमें अगर हायर डाटा एनालिसिस करना है, सपोज मुझे XPS करना है या मुझे FTIR करना है, तो आई कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर। या XRD की पीक्स मुझे डिफाइन करनी है। XRD सुना है, एक्स रे डाइफ्रैक्शन? हाँ, तो उसकी पीक्स का मतलब क्या है? उस पीक में उस क्रिस्टल का साइज कितना है? 20 नैनोमीटर है, 19 नैनोमीटर है, 15 नैनोमीटर है, कितना है? ठीक है, वो किस प्लेन में लाई कर रही है? 0 से 20 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, 30 से 40 के बीच में लाई कर रही है, कहाँ लाई कर रही है? दीज सॉफ्टवेयर कैन हेल्प। ये जर्नल सॉफ्टवेयर है, मोस्ट वाइडली हम ओरिजिन ही यूज़ करते हैं। अगर आपको अपना स्ट्रक्चर देखना है या और आगे जाना है, FTIR देखना है, XPS देखना है, NMR कराना है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं डाटा एनालिसिस के लिए। So keep publishing, be consistent, learn from reviewers, collaborate with your mentors. Research will always help you to build your academic profile. Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, ma'am, for your insightful, detailed, and motivating session. Your explanation about selecting a meaningful research topic, structuring a research paper, abstract writing, literature review, methodology, citation styles, journal indexing, avoid predictory journals has truly enhanced our understanding. Your words have not only informed us but inspired us to take research seriously and responsibly. On behalf of all the students and faculty members, I extend a heartfelt gratitude. I would also like to invite our respected IIC convener, Mrs. Vivek ma'am, to share her few insights with us. थैंक्स स्टूडेंट्स। मनमीत मैम ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अबाउट द रिसर्च जर्नल, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि फ्यूचर में आप हमारे साइंटिस्ट बने, हमारे रिसर्चर्स बने, ठीक है, और इस तरह के खूब सारे पेपर्स निकालें, राइट। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैम ने बहुत अच्छा एक बेस बनाया आपका, और फ्यूचर में आप जब अगर इस फील्ड में जाएंगे तो इन चीज़ों पर आपको काम भी करना है और डेप्थ में जाना है, ठीक है, और अपने लिए नया सीखना है, नया दूसरों को सिखाना है, ठीक है जी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। और IIC आपको पता है रिसर्च इनोवेशंस पर एम्फेसिस कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए इस पर एम्फेसिस हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया है हर कॉलेज के लिए कि उनकी IIC सेल होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, और आप सबके लिए बेस्ट विशेस। इन फ्यूचर आप सब बहुत अच्छे से अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अपना नाम रोशन करेंगे। एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। Thank you
so much, ma'am, for your motivating and visionary words. If anybody has any queries related to research writing or journal publication, kindly raise your hands. Okay. And the last, anyone? बेटे लाइब्रेरी में जाइए, जर्नल्स देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा बेस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? मत पढ़िए, पर एक बार देखना शुरू कर दीजिए. रूटीन में देखेंगे तो आदत पड़ जाएगी, राइट? तो बस ये काम करना है अब आपको, और इस फील्ड में जाना ही जाना है. I request you all to kindly participate in poster presentation on Science Day. I request क्योंकि you. उसमें आप लोग रिसर्च पोस्टर ही बना रहे हैं. हम लोग बच्चों को बता रहे हैं कि रिसर्च पोस्टर बनेगा कैसे. वो रिसर्च पोस्टर आप आगे कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो काइंडली इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट इन द पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन. As we conclude today's workshop, let us remember, research is not about pages, it is about a purpose. Publication is not about certificates, it is about contribution. Innovation is not about competition, it is about creativity and responsibility. Let us promise ourselves that we will not hesitate to explore, question, write and publish. May today be the beginning of many research journeys. With this hopeful note, we come to the end of this insightful workshop. Thank you all for being a part of this academic endeavor. Have a wonderful day ahead. Thank you.